Hi everyone. In anthropology lecture series, today we are going to begin with paper 2. So let's begin. See, this is going to be the first lecture for paper 2. So there are certain points that I wanted to tell you, like how we are going to proceed with the lectures. So the very first thing is we are going to follow the same sequence as given in your syllabus. Okay, because there is nothing better than following the UPSC syllabus. So we are going to proceed accordingly. The next thing is we are going to divide the topics into various parts. Okay, so for this lecture, we are going to discuss topic 1.1 part 1, which is highlighted in maroon as you can see over here. Okay, and the other parts will eventually follow up. This will help us in increasing the frequency and of course making the video shorter for you to refer it back. Okay, and the details like how the lectures are divided, when the lectures are uploaded. So for that you can also refer the index that is given in the description of this video. Okay, you can go through that to know like how the topics have been divided, because I have seen during paper 1 like many of you are not being able to figure out कि ये वाला topic cover हुआ है या नहीं हुआ है. For that you can definitely go back and see the index. All right. Another important thing is like those of you who have watched my previous lectures on paper 1, you must have observed that there are certain value additions that I add during the lectures. Okay, so these value additions are from the previous year questions, PYQs that you say, and certain things which I feel is relevant for you to know to have a better understanding of the topics that you are studying. Okay, so this the length and breadth of the value addition that I'm telling you. So for paper 2 also there will be certain value additions, but just to save on some time so that we can complete the lectures more quickly, because value additions को explain करना उनको include करना it takes around a good amount of time. So just to save on some time what I'll do is कि जो value additions में explanation की ज़रूरत नहीं है, those value additions that did not require much of an explanation will be included in notes only, and those value additions which I'll feel is necessary for you to understand and for me to explain, that I will include in the video lectures. Okay, I hope till here it's clear for everyone. Okay, so इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना पेपर 2 का लेक्चर 1.1 पार्ट 1. नाउ लेक्चर का फ्लो कैसा होगा आज के इस लेक्चर का. सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिक ड्यूरिंग दी पेलियोलिथिक डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्री हिस्टोरिक आखिर हम किस चीज़ की बात करें, एंड सिंस दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर तो हम इसके अंदर ही इंट्रोडक्शन देख लेंगे. देन प्री हिस्टोरिक इन इंडिया, प्री हिस्टोरिक कल्चर का इंडिया में एक क्या स्टेटस है, कब से शुरू किया गया था, हु ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट एंड सो फोर्थ. वो सारी चीज़ें हम प्री हिस्टोरिक इन इंडिया के अंदर देखेंगे. देन इवेंचुअली विल लैंड अप टू द पेलियोलिथिक, जिसके अंदर हम उनको फर्दर सब डिवाइड करेंगे लोअर, मिडिल और अपर के अंदर. ठीक है, और इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, क्लाइमेट, टूल्स, ये सारी चीज़ें हम होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे इसके अंदर. ऑलराइट, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ. सो द वेरी फर्स्ट थिंग एज द इंट्रोडक्शन सेज कि जब हम प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं सो दैट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम अदर थिंग्स. अगर प्री हिस्टोरिक है तो कुछ पोस्ट हिस्टोरिक या हिस्टोरिक इस तरीके की भी चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी. ऑफ कोर्स दे एग्जिस्ट. अब आई नीड नॉट टू टेल यू कि हिस्ट्री का क्या मतलब है, दिस इज तो आई जस्ट इंक्लूडेड फॉर अ लिटरेचर पर्पस. अगर आप डिवाइड करें पूरी एक टाइम लाइन को from the time the human being that we are going to study right now, so that can be divided into pre-history, history और बीच में एक proto history आपका आ जाता है कहीं ना कहीं. So pre-history आप किसको कहते हैं? That is the event जो भी आपके जब writings नहीं हुआ करती थी, the writings as we know today, इस टाइप की writings available नहीं थी, उस टाइम पीरियड को आप प्री हिस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं. और इसमें मोस्टली आपके जितने भी स्टोन एजेस हैं ना वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं. ठीक है, और कहीं आपको कॉपर ब्रोंज एज जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड में देखने को मिलेगा मोस्टली. अगर आप यहाँ से शुरू करें कि ये पेलियोलिथिक नियोलिथिक तक तो दिस इज प्योरली प्री हिस्टोरिक. ठीक है, और ये मिडिल एज से शुरू करके आपका जब तक यहाँ पे राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, दिस पीरियड इज समवॉट नोन एज द प्रोटो हिस्ट्री. ठीक है, तो इसमें एक बहुत आप कह सकते हो एक सॉलिड क्लासिफिकेशन नहीं है,
बट यू कैन से इन दिस वे बिकॉज जब आप बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की, तो इसके अंदर आके हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे भी सिविलाइजेशन आते हैं, मेसोपोटामिया, ये सारी सिविलाइजेशन इसी के अंदर आती हैं. एंड फ्रॉम दैट सिविलाइजेशन वी नो, एटलीस्ट वी डोंट हैव समथिंग इन रिटन, बट वी हैव समथिंग दैट कैन टेल अ लॉट अबाउट देयर कल्चर्स. लाइक आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सीन्स मिलते हैं वो बहुत कुछ बताती हैं उनके कल्चर के बारे में, अगर वो कहीं डिसिफर हो सके in the future. So we'll get to know a lot about the Harappan civilization that will be as good as a written record, right? उसी तरह से मेसोपोटामिया में भी आपको इस तरीके के certain writings, symbols ये देखने को मिलते हैं. That is why they have been included in the proto history. और जो history की बात आती है, this is very clear that we all know कि history किसको कहते हैं. जब आप ancient civilization, medieval या modern इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं तो they are all the part of history. जब आपके राइटिंग का इन्वेंशन हो गया था. सो आई होप ये प्री हिस्टोरिक से क्या कहने का मतलब है वो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. नाउ हियर इज अ टाइमलाइन चार्ट, नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर द लेक्चर बट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. और यही चार्ट्स हमने अपने पेपर 1 के अंदर भी जहाँ कहीं भी हमने पढ़ा है रिगार्डिंग दी स्टोन एजेस एंड टूल्स, हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं. सो इन दिस चार्ट दैट यू कैन सी जो प्री हिस्ट्री है आपका वो किन किन तरीके से डिवाइडेड है और वहाँ पे क्या क्या इवोल्यूशंस हुए थे, क्या क्या चेंजेस आए थे, दैट इज ऑल्सो रिटन. प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आपके चालकोलिथिक आ जाते हैं, देन आपका ब्रोंज एज, आयरन एज, और जो आपकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री हम हिस्ट्री की बात करते हैं. तो दिस इज अ गुड चार्ट दैट यू कैन रेफर बैक. और ये एक दूसरी टाइम लाइन है जब हमने अलग अलग एराज पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, स्पेशली जब आप इपूच के बारे में पढ़ते थे, क्योंकि हमने होलोसिन और प्लेस्टोसिन इपूच को बार बार रेफर किया हुआ है पेपर 1 के अंदर. सो उसके अंदर हमने देखा था कि अभी हम होलोसीन इपूच में हैं, राइट. सो होलोसीन इपूच के अंदर ही आपका फ्रॉम मेसोलिथिक टू आयरन एज ये सारे मेसोलिथिक होलोसीन के अंदर ही आते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर. और जो आपका प्लेस्टोसीन इपूच था उसके अंदर आपके जो पेलियोलिथिक के लोअर, मिडिल और अपर, ये जो तीनों हैं, दीज आर पार्ट ऑफ प्लेस्टोसीन. Again, these are not directly related to this lecture, but you should have an understanding of it, of this particular timeline कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है. Now let's have a discussion कि prehistoric culture इंडिया में कब से हम शुरू करते हैं, क्या मानते हैं, what are the various contributions by various people. Name that should come to your mind when you talk about the prehistoric culture contribution in India is of Robert Bruce Foote. And of course there are many Indian archaeologists also, but अगर हम बात करें कि who has laid the kind of a foundation to it, so it was this person. And a question was asked in 2020 examination, means examination, जिसके अंदर आपको पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे की कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन आर्कियोलॉजी में, ठीक है. तो यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी, ठीक है. सो बेसिकली ही वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब थे उन्होंने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे, तो उसी डिपार्टमेंट्स में एक ये आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी था, एंड रॉबर्ट ब्रूस फूटे वाज वर्किंग देयर, ठीक है. तो इन्होंने जो फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल था, अब ये पेलियोलिथिक टूल्स क्या होता है, तो इफ़ यू कैन जस्ट गो बैक and refer to the lectures, I guess 1.8 of the paper 1, जिसके अंदर आपको अलग अलग टूल कल्चर के बारे में बताया गया है, ठीक है. सो पेलियोलिथिक कल्चर्स के जो टूल्स हैं, दे आर सर्टन टूल्स दैट आइडेंटिफाइज विद द पेलियोलिथिक कल्चर, और वो टूल्स आपके एचलोनियन टूल्स जिसको बोलते हैं, अलग अलग शेप्स एंड साइज के ऊपर डिवाइडेड है. सो आई एम एज्यूमिंग कि आपने वो लेक्चर्स देख रखे हैं, यू हैव सर्टन आइडियाज़ कि हम किस टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, राइट. सो इन्होंने ये जो पेलियोलिथिक टूल्स था जो अदर जगहों पे, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में डिस्कवर किए गए थे, तो इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार पेलियोलिथिक टूल्स को डिस्कवर किया था ड्यूरिंग 1863 मद्रास के करीब, ठीक है. और इसी के ऊपर बेस्ड आप देखेंगे अलग अलग कल्चर्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे. पेलियोलिथिक में अलग अलग कल्चर्स है, उसी में से एक मद्रासियन कल्चर आता है, ठीक है. तो ये जो मद्रासियन कल्चर है, सो ये आपके यहीं से निकल के आया, बिकॉज ये जो पेलियोलिथिक टूल है ये मद्रास में डिस्कवर किया गया था और उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया, ओके. तो ये टूल कल्चर के बारे में हम बात करते हैं. तो मोस्टली जब भी आप स्टोन एज या इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो द फोकस इज मोर ऑन टू दी टूल्स, इतना आप ध्यान में रखिएगा. और इन्होंने जो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आफ्टर हिम देयर वर लाइक मेनी अदर पीपल, जो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से लोग थे, तो उनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, that they have discovered a lot many other things.
जिसमें वीएन मिश्रा जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 के अंदर ही, तो इनका भी नाम आता है। तो इफ़ यू हैव रेड दी चैप्टर्स थॉरली, आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आंसर करना डिफिकल्ट नहीं होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। और ये जो आपके आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स थे, दे क्लियरली इंडिकेट दैट द एचलोनियन वाज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ होमिनिन ऑक्यूपेशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। व्हाई सो? बिकॉज जो इनको पेलियोलिथिक टूल्स मिले थे वो एचलोनियन कल्चर के थे, और उसी के टाइम अकॉर्डिंग आपके जो होमिनिन थे, होमो इरेक्टस बोल लीजिए आप, वो आपके सबकॉन्टिनेंट में पाए गए थे। तो दैट मीन्स दे वर यूजिंग दीज टूल्स फॉर देम, राइट। वहीं जब आप नियानर्थेलिस की बात करते हैं तो वो अलग टूल कल्चर फॉलो करते थे। और जब हमने एस्ट्रोलोपिथिकस और उन सब के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था उनका टूल कल्चर क्या था एग्जैक्टली बहुत आइडिया नहीं है, बट वो भी सर्टन टाइप्स के टूल्स यूज़ किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इस पर्टिकुलर स्लाइड से जो आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ अबाउट दी रॉबर्ट ब्रूस फूटे एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और बाकी तो आप उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड हियर इज़ द थिंग, जो लेमकोवियन, एल्डोवान, एचलोनियन, फिर आपकी मॉइस्टेरियन, फिर आर्गोनसिनियन और माइक्रोलिथ्स, ये कैसे कैसे आगे बढ़ते गए, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जो टूल कल्चर में आप देखेंगे, ठीक है। और ये अलग अलग टूल कल्चर भी अलग अलग पीरियड से रिलेटेड होते हैं। मोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स दैट यू शुड नो अबाउट आर लाइक मेंशन्ड ओवर हियर। आप इनको जब नोट्स बना रहे हो उसमें इंक्लूड कर लें, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइमलाइन, तो जो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स की टाइमलाइन है इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड, so you might find that there is some kind of differences in between them, but more or less on a broader perspective they are same. आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं that in India, for example कि 5G 2021 में आई, but maybe for parts of Europe, North America, वो 2017-18 से ही present थी। It's something like that, because when we are talking about the various periods of stone ages, तो हम वहाँ स्टोन टूल्स की ही बात करें, उनके एडवांसमेंट की ही बात करें, तो ये उसी तरह से चलता है। तो अगर आप ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर अपने दिमाग में रखना चाहते हैं कि कौन कौन से कल्चर्स कब कब एग्जिस्ट किए इंडिया में, तो दिस इज़ द ब्रॉड टाइम लाइन दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। मोर लेस आपको सब जगह यही मिलेगा, कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिल सकते हैं, बट आपको कोई एक स्टैंडर्ड लेके उसी टाइम लाइन को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी पीलियोलिथिक एज है, ये 2 मिलियन BC से 10,000 BC, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड देन आयरन एज, ये सारे वैसे वैसे चलते गए, ठीक है। नाउ इंडियन स्टोन एज, ऑल्दो यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि इंडियन स्टोन एज किन किन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। और आज जो हम इस लेक्चर के अंदर फोकस करने वाले हैं विल फोकस मेनली अपॉन दीज 3, ठीक है। हम एक ओवरऑल पेलियोलिथिक का देखेंगे स्ट्रक्चर, देन उसके बाद इनके जो अलग अलग सब डिविजन्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, हम उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो टू लाइक डायरेक्टली जंप ऑन टू दैट टॉपिक, हमें पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इंडियन पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं वो क्या हो सकती हैं, सो दैट यू कैन मेंशन दोज थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप पेलियोलिथिक के बारे में लिख रहे हैं। सो पेलियोलिथिक हमने अभी देख लिया, यहाँ पे टाइमलाइन जो मेंशन है 2 मिलियन BC to 10,000 BC, दैट इज द सेम। और अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर आर्थर लियोलिन बेसम, सो बेसिकली इन्होंने एक बुक लिखी थी द वंडर्स दैट इंडिया वॉज। इसके अंदर इन्होंने बताया कि इंडिया में जो प्री हिस्टोरिक एजेस हैं वो यूरोप की तरह ही, यूरोप में भी जो प्री हिस्टोरिक एजेस थे उनमें भी आपको आइस एजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह से इंडिया में भी जो प्री हिस्टोरिक एजेस थे दे हैव बीन थ्रू द आइस एज। आइस एज का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से पृथ्वी आइस से ढकी हुई है, ठीक है। सो द चांसेस ऑफ द ह्यूमन सर्वाइवल आर वेरी लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे जैसे वो आइस पिघलनी शुरू हुई, जैसे जैसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हुआ, प्लांट्स ग्रो करने शुरू किए, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स आए एंड इवेंचुअली द ह्यूमन बीइंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो इस किताब में इन्होंने इस वाली बात को मेंशन किया है। और जो आपकी ओल्ड स्टोन एज है और पेलियोलिथिक कल्चर जिसको आप बोल सकते हैं, इट डेवलप्ड इन द प्लेओस्टोसीन पीरियड। ये मैंने आपको पहले भी शो किया था इन दिस चार्ट कि ये प्लेओस्टोसीन जो है आपका इपूच, इसके अंदर आपको पेलियोलिथिक देखने को मिलेगा। पेलियोलिथिक के जो तीनों ही पार्ट्स हैं, अपर मिडिल और लोअर, तीनों के तीनों आपको प्लेओस्टोसीन में नजर आएंगे, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। और जो आपका आइस एज था उसके बाद जो पेलियोलिथिक कल्चर इंडिया में डिस्कवर किया गया है, तो अलग अलग डिस्कवरीज थी जो अलग अलग जगहों पे की गई थी। द फेमस अमंग्स देम आर द सोहन इन पंजाब
सोहन और मद्रास इंडस्ट्री, जिसको आप मद्रास के आसपास की एक जगह है, वहाँ पे डिस्कवरी की गई थी। इनकी डिटेल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको याद रखनी है कि जो पेलियोलिथिक स्टोन्स थे, दे वर मोस्टली ऑफ द क्वार्टजाइट स्टोन्स। अलग अलग स्टोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे सिलिकन का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, कहीं पे क्वार्टजाइट यूज़ किया गया था, कहीं पे सम अदर फॉर्म ऑफ स्टोन वॉज यूज. So mainly in this Paleolithic age or the Paleolithic stones were made up of quartzite. ठीक है, that is why the Paleolithic men are also known as the quartzite man. So I hope कि ये जो slide है, इससे आपको enough material मिल गया होगा for writing the introductory part. Now talking about the characteristics of the Paleolithic age. So see, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल देख लेंगे कि पेलियोलिथिक एज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे. देन इंडिविजुअली भी हम देखेंगे कि लोअर, मिडिल और अपर को आपस में क्या चीज़ें थी जो डिफरेंशिएट करती थी. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देख रहे हैं, ये मोर और लेस विल रिमेन कॉमन एंड रिप्रेजेंट दी पेलियोलिथिक एज अ होल. आई होप दैट्स वेरी क्लियर. सो अगर हम इनमें बात करें कि लोग और टूल्स, like people and tools, these are like two main features that you should know, that how are the people at that point of time and what kind of tools that they were using. और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था that एचलूनियन टूल्स आपके पेलियोलिथिक में, स्पेशली जो लोअर पेलियोलिथिक था उस टाइम पे यूज़ किए जा रहे थे. तो ये कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो आपको याद रखने, बिकॉज एग्जाम में इन्हीं पॉइंटर्स के ऊपर आप इलेबोरेट करते हो और आंसर लिखते हो. तो पीपल कैसे थे, तो मोस्टली जो भी फाइंडिंग्स एक्सकेवेशन में देखी गई हैं उनके हिसाब से द पीपल बिलोंग टू द निग्रीटो रेस. ओके, एंड वेर ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन, वुली हेयर, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट स्टैचर. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे लोगों के ऑफ द पेलियोलिथिक एज. And they were hunter and the food gatherers and lived in very small communities with no fixed home. तो ये सारी चीज़ें आपने जनरल स्टडी के पर्पज से भी पढ़ रखी होंगी कि पेलियोलिथिक की जब हम बात करते हैं तो इट वाज लाइक वेरी वेरी ओल्डर टाइम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं. और उस टाइम पे जो इंसान थे, दे वर नॉट हैविंग प्रॉपर होम्स. जो हम भीमबेटका का केव और इस जैसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो देयर वी सी कि हाउ दीज पीपल वर केव ड्वेलर्स. और ये हंटर एंड गैदरर्स थे बिकॉज जो आपकी नियोलिथिक है उस टाइम के बाद से एग्रीकल्चर आई थी. तो आप इस तरीके से भी याद रखेंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है. बिकॉज हमें यहाँ लाइन बाय लाइन कुछ रटना नहीं है. वी जस्ट नीड टू नो फ्यू पॉइंटर्स दैट विल हेल्प अस इन राइटिंग द आंसर. एंड दे वर नोमैड्स, although a few might have been huts of shrubs, leaves, ate fruits and vegetables and lived on hunting. So of course if they were hunters and gatherers, तो एक जगह पे नहीं रहते थे और फूड कलेक्ट करके खाते थे. तो एक जगह पे अगर पेड़ पे फल अवेलेबल नहीं है तो दे विल डेफिनेटली मूव ऑन टू दी अदर एरियाज एज वेल. और ज़्यादातर क्लोथिंग का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था. धीरे धीरे आपकी ट्री लीव्स और एनिमल स्किन्स वर बीइंग यूज्ड टू कवर द नेकेड बॉडी. ओके, then talking about the potteries, क्या potteries Paleolithic age में available थी. so there is no knowledge of pottery available. यानी कि जो भी excavations हुए हैं, findings हुई हैं, उनमें हमें ऐसे कोई भी pottery के आप कह सकते हो अवशेष नहीं मिले हैं that you can say that it was present during that point of time. also जो फायर की डिस्कवरी थी that you can see कि वो मिडिल से लेके अपर पेलियोलिथिक में कहीं डिस्कवरी की गई थी, ठीक है. तो इसीलिए पॉटरी, दैट टू बर्न्ड पॉटरी जो बनती है आज के डेट में भी आप देखेंगे उस टाइप की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी. When you talk about the art forms, so then you can think about the art form that is available in the Bhimbetka caves. Of course they are the very prominent example जिसके अंदर आपको geometrical shapes में कुछ पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, मैन डांसिंग एंड हंटिंग सीन्स, ये सारी चीज़ें हैं. अब अगर हम बात करें रिगार्डिंग द बुरियल प्रैक्टिसेस दैट दे डू, सो वो ना तो बरी करते थे ना ही बर्न करते थे डेड वंस को. दे जस्ट लीव देम एज दे वेर. यानी कि कल्चरल पर्सपेक्ट से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वो डेड्स को लेके उनकी वैसी कोई धारणा नहीं थी. लाइक वी हैव स्टडीड ड्यूरिंग द नियंडरथैलिसिस दैट दे यूज्ड टू बरी द डेड वंस. और रेड ऑर्चर और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं. बट जब आप बात करते हैं पेलियोलिथिक एज में ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दे डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ दैट कल्चर, ऑलराइट. और जब बात करें दैट हाउ दे यूज्ड टू लिव, एंड एज वी हैव सीन कि एक प्रॉपर ड्वेलिंग नहीं हुआ करती थी उनकी. दे ईदर यूज्ड टू लिव इन केव्स और इन ओपनिंग्स और कुछ छोटे मोटे चीज़ें
वो पत्तों से बना लिया करते थे, उस टाइप की शेडिंग्स में रहा करते थे, बट नॉट प्रॉपरली एनी काइंड ऑफ एन हाउसिंग. सो बेसिकली टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज उस टाइम पे जो एनिमल्स हुआ करते थे दे वर, मतलब दे वर इटसेल्फ लिविंग इन द फॉरेस्ट. सो आपको वाइल्ड एनिमल का खतरा काफ़ी रहता है. So they used to live in groups to protect themselves from these wild animals. Wild animals आते तो सब लोग मिलके उसको भगा सकते थे. That could have been done. And if a man is like living alone, then the wild animal will definitely for sure will come and just eat him, right? और टूल्स की अगर हम बात करें कि टूल्स कैसे यूज़ हुआ करते थे, तो हमने पहले भी देखा एचलूनियन टूल्स हुआ करते थे. और उससे अगर हम ओवरऑल पेलियोलिथिक की बात करें तो एचलूनियन टूल्स भी थे, और भी अलग अलग टाइप के टूल कल्चर्स थे जो कि आगे चल के हम देख लेंगे स्पेसिफिकली कौन कौन से थे, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें टूल्स किस टाइप के थे, तो मेटल्स का तो यूज़ हुआ नहीं करता था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पेलियोलिथिक, दैट इज द स्टोन एज. तो वहाँ पे टूल्स आपको स्टोन में ही मिलेंगे, राइट. और उस टाइम पे कोई कल्टिवेशन का कंसेप्ट भी नहीं था. सो दैट मीन्स कि जो टूल्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे. दे मस्ट बी लाइक वेरी सिंपलर टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर cutting fruits or like killing animals, such a kind of things, right? तो वो rough stones हुआ करते थे mainly of quartzite, और इसीलिए भी पेलियोलिथिक मैन को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है, बिकॉज जो उस टाइम पे स्टोन टूल्स हुआ करते थे दे वर मेनली मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट, ऑलराइट. और ये अनपॉलिश्ड हुआ करते थे ऑफ कोर्स, रफ स्टोन्स लाइक हैंड एक्सेस, चॉपर, ब्लेड्स, ब्यूरेन, स्क्रैपर्स. सो सी दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, ये जो पॉइंटर्स है ना, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वेरी क्रिस्प कि पूरी की पूरी पेलियोलिथिक एज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था. तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द कीवर्ड्स, और इसी कीवर्ड्स के हेल्प से आप एग्जामिनेशन में इलेबोरेट करेंगे, ऑलराइट. And in this slide you can see all the tools used during the lower, middle and the upper Paleolithic. So basically you can refer to this slide again and again जब कभी भी हम middle या upper की बात करते हैं, तो this is a consolidated one. जब आप lower Paleolithic की बात करते हैं, when we see कि quartzite स्टोन्स ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, और उस टाइम में बहुत सिंपलर टूल्स होते थे. ऑल्दो पूरे स्टोन एजेस में भी आपको बहुत एडवांसमेंट नहीं मिलेगी टूल्स में, बट स्टिल देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ एन प्रोग्रेशन दैट यू कैन सी. तो लोअर पेलियोलिथिक में आपको चॉपर जो कि बिल्कुल ये गोल से आपके पेबल शेप्ड देखने को मिलेंगे. बाईफेसेस ये कुछ कुछ एक्सिस की तरह काम करते हैं, जो बेसिकली कटिंग के लिए, जो एनिमल होते हैं उसको कटिंग के लिए यूज़ किए जाते होंगे, because the people at that point of time were mainly dependent upon the hunting and the gatherings, right? और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मिडिल पेलियोलिथिक एंड देन अपर पेलियोलिथिक, हम इन सारे टूल्स को भी एक एक करके क्लाइमेट की जब बात करें तो जैसे प्रोफेसर बसम ने जो डिस्कस किया था, एज यू कैन सी ओवर हियर, लाइक इन दिस बुक द वंडर दैट इंडिया वाज, कि जो भी आपके प्री हिस्टोरिक एजेस हैं दे हैव पास थ्रू द आइस एज, और जैसे जैसे आइस एज खत्म होता गया, क्लाइमेट कंड्यूसिव होता गया फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, वैसे वैसे आपको ह्यूमन बींग्स और द होमो सेपियंस दे सर्वाइव्ड एट सर्वडर प्लेसेस. तो यहाँ पे भी जब आपके पेलियोलिथिक एज में जो भी डिस्कवरीज की गई हैं, सो मोस्टली आपके राजस्थान, शिवालिक रेंज, और जिसको आप सोहन वैलीज भी काउंट करते हैं इसके अंदर, और जो आपके मद्रास के अंदर मद्रासियन कल्चर जिससे निकल के आता है, इन सारे एरियाज में जो भी फाइंडिंग्स किए गए, अकॉर्डिंग टू दैट जो क्लाइमेटिक कंडीशन था दैट हैज टर्न टू अ बिट ह्यूमिड वन. और इस ह्यूमिड वन के होने की वजह से जो फल फूल थे जो भी वहाँ पे होने लगे थे, और जो ग्रासेस थी फॉर द एनिमल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाने लगी, एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्ड इन द ह्यूमन सर्वाइवल. और इसी की वजह से भी अलग अलग जो स्टोन्स थे, जैसे कि एक स्टोन विच इज़ नोन एज द चर्ड, तो ये टाइप के भी स्टोन्स थे जो कि आपके टूल्स एंड वेपन्स बनाने के काम में आते थे. इस टाइप के स्टोन्स भी पाए जाने लगे. वाई? बिकॉज जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती गई और अलग फॉसिल की डेवलपमेंट हुई, और बिकॉज एज वी नो स्टोन्स आर डेवलप्ड अल्टीमेटली विद द फॉसिल्स, सो जैसे जैसे फॉसिल्स के डेवलपमेंट हुए, जो आइस की कवरेज थी वो हटी, तो अलग अलग टाइप के आपको पैरामीटर्स हर जगह पे देखने को मिले. सो दैट इज़ अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस. इन शॉर्ट आप 2-3 लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं. ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द लोअर, मिडिल एंड द अपर पेलियोलिथिक. अभी तक जो हमने बात करी है कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स की, दैट वी डिस्कस्ड एज एन ओवरऑल फॉर द पेलियोलिथिक. अब हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि लोअर पेलियोलिथिक के जो स्पेसिफिक फीचर्स थे वो क्या क्या थे, मिडिल के क्या थे एंड अपर के क्या थे, एंड दैट इज हाउ विल कंसोलिडेटेड. अगेन फॉर आंसर राइटिंग, अगर आपको क्वेश्चन 10 मार्कर का पूछा जा रहा है
और उसमें बस आपको पेलियोलिथिक के बारे में पूछा गया है, तो देन अकॉर्डिंगली यू कैन राइट अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा गया है कि लोअर पेलियोलिथिक के बारे में बताइए, मिडिल के बारे में बताइए, अपर के बारे में बताइए, और कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं व्हेन दे आस्क यू अबाउट सर्टेन रीजंस कि साउथ पेलियोलिथिक के बारे में बात करें या नॉर्थ पेलियोलिथिक के बारे में बताएं। सो फॉर ऑल दोज क्वेश्चन यू नीड्स टू बी रेडी, ठीक है। और ये रेडी आप कैसे होंगे, जब आप होलिस्टिकली किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं। तो अब हम लोअर पेलियोलिथिक को देखें तो ये अप टू 1 लाख BC तक था, और मिडिल पेलियोलिथिक 1 लाख से 40,000 BC, एंड देन अगेन अपर पेलियोलिथिक आपकी 40 से 10,000 BC। देन यू कैन सी कि जो मोस्ट ऑफ द पेलियोलिथिक का कवरेज है दैट इज इन दिस लोअर पेलियोलिथिक एज, राइट। तो अब हम एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोअर पेलियोलिथिक एज की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद रखनी है कि जो आइस एज है, आइस एज का मोस्ट ऑफ द पार्ट आर इन दी लोअर पेलियोलिथिक एज, और सस्टेनेंस जो थी वो हंटर्स एंड गैदरर्स की ही थी। जब हम टूल्स की बात करते हैं तो एचलोनियन हैंड एक्सेस और क्लेवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टूल्स वर रफ एंड हैवी, और लाइमस्टोन्स का भी यूज होता था अलॉन्ग विद द क्वार्साइट, राइट। तो हियर यू कैन सी द वेरियस पिक्चर्स दैट यू नीड टू ड्रॉ जब आप ऐसे किसी भी कल्चर के बारे में बात कर रहे हो। एंड हियर इज अ वेरी ब्यूटिफुल चार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं टूल ट्रेडिशंस की, और आप यहाँ पे स्पीसीज भी देख सकते हैं, बट लेट्स नाउ फोकस अपॉन द टूल ट्रेडिशंस ओनली। जब आप लोअर पेलियोलिथिक की बात करते हैं तो लोअर पेलियोलिथिक में मोस्टली आपको एचलूनियन ही देखने को मिलेंगे। ओल्डोवान भी है, बट ओल्डोवान का मोस्टली रिलेशन अफ्रीका से है, बिकॉज जैसा हमने 1.8 पेपर 1 में भी देखा था, बट ये एचलूनियन जो है ये आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इन पेपर 2 वी आर मोस्टली कंसर्न विद द इंडियन पर्सपेक्टिव, राइट। और जैसे जैसे आप ऊपर मूव ऑन करते जाएंगे आप देखेंगे कि अलग अलग टूल ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं। लाइक ये मोस्टीरियन टूल ट्रेडिशन आया, उसके पहले एचलूनियन था, इसी तरीके से फर्दर एडवांसमेंट होती जाती है। और जैसे जैसे आप पहुंचते हैं ऊपर, आपको माइक्रोलिथ्स भी देखने को मिलते हैं जो कि मेसोलिथिक के आसपास के है टूल ट्रेडिशंस में, ऑलराइट। देन हैबिटेशंस की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स दे वर इंक्लूडिंग केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। इसमें इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखना है दैट इज ऑफ द भीमबेटका केव्स, ऑलराइट। देन होमिनिन फॉसिल रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो होमिनिन फॉसिल रिकॉर्ड्स में एक इंपॉर्टेंट जो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द डिस्कवरी इन 1982 बाय अरुण सोनकिया। इन्होंने नर्मदा मैन की डिस्कवरी की थी, और नर्मदा मैन के बारे में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले, दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जिसके अंदर हम ब्रह्मपिथिकस, शिवापिथिकस, नर्मदा मैन इन सबको डिस्कस करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लोअर पेलियोलिथिक को बिलोंग करते थे। एंड हियर अगेन यू कैन सी दी होमिनिन्स कि कौन कौन से होमिनिन कौन कौन से पीरियड में पाए जाते हैं। तो अब जब आप बात करते हैं ऑस्ट्रालोपिथिकस की, तो ऑस्ट्रालोपिथिकस आप देखेंगे ये किसी भी पेलियोलिथिक का पार्ट नहीं है, दे आर लाइक समवट बिफोर द पेलियोलिथिक एज अक्रॉस द वर्ल्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ते जाते हैं देन होमो हेबिलिस आते हैं, फिर इरेक्टस आते हैं, देन हेडलजर्बर्जिनीज आते हैं। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको उस तरह से होमिनिन की एडवांसमेंट दिखेगी। बट हियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव, इसीलिए हम यहाँ पे नर्मदा मैन को डिस्कस कर रहे हैं। और नर्मदा मैन भी कहीं ना कहीं आपके होमो इरेक्टस के अंदर ही आते थे। उसके अपने भी कुछ क्रिटिसिजम्स है, कुछ आगे हम चल के जब देखेंगे नर्मदा मैन के बारे में उस टाइप पे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि लोअर पेलियोलिथिक कल्चर कौन कौन से जगह में इंडिया में स्प्रेड था। तो इट ऑकर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला इन साउथ इंडिया, और जो सिंध प्रोविंस है आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। इन जगहों को छोड़ के आपको ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया लोअर पेलियोलिथिक देखने को मिलता है। एंड इट अर्लीस्ट रेमिनेंट हैज बीन फाउंड इन द सोहन एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट। जब आप बात करते हैं इंडियन मैप की तो कहीं आपको इधर में ये सोहन वैली देखने को मिलेगा, और जो रीजन्स जहाँ पे नहीं पाए जाते थे लोअर पेलियोलिथिक कल्चर दैट इज समवट आपका नॉर्थ वेस्ट, कुछ ये वाला एरिया, समवट लाइक केरला और तमिलनाडु का कुछ पार्ट, वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। अदर देन दैट यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर। पेनिनसुलर इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जो आप याद रख सकते हैं। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ड्वेलर्स देखने को मिलते थे। जहाँ पे कुछ केव ड्वेलर्स थे जो कि फुट हिल और रॉक शेल्टर्स में रहते थे, ऐसे आपको MP, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। फॉरेस्टेड एरिया में भी पेलियोलिथिक आपको लोअर पेलियोलिथिक देखने को मिलता है। एंड दीज आर द नेम दैट यू कैन रिमेंबर। जब आप ओपन एयर की बात करते हैं तो वैसे भी कुछ आपको जो एक्सकवेशंस में पाए गए हैं
located in these area. So these places become important because जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक रीजन को लेके पूछ लिया जाता है, तो फॉर मेंशनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन आपको पता होना चाहिए. अब जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र और डेक्कन रीजन के बारे में अगर आपको पूछ लिया जाता, तो उस टाइम पे आप लिख सकते थे कि वहाँ पे हैबिटेशंस कैसे हुआ करते थे, दे वर लिविंग इन द फॉरेस्टेड एरिया. जब आपको सेंट्रल इंडिया के बारे में पूछ लिया जाए कि उस वहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक किस टाइप का था, तो देयर यू कैन राइट कि केव ड्वेलर्स थे और इस तरीके की चीज़ें थी, राइट. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया जब आप बात करते हैं, दैट इज लाइक ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया, आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा डिवीजन. तो जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया हो गया, वहाँ पे जहाँ कश्मीर रीजन में आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते थे, और जो पंजाब में जहाँ पे रिवर वैलीज थी आज भी हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गए, मेघालय, असम, इन सब जगहों पे भी आपको लोअर पैलियोलिथिक देखने को मिलेगा. एंड अगेन इसमें भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं. लाइक हियर जो हमने देखा, ये पेनिनसुलर इंडिया का एग्जांपल था, एंड ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया का एग्जांपल है. सो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. और एक बोरीन महाराष्ट्र है, ये भी आपको याद रखना है. सो टू समराइज, दीज आर द मेजर साइट्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक, बिकॉज हमने देखा कि मोस्टली आपको इंडिया के हर पार्ट में वो देखने को मिलेंगे. तो कौन कौन से प्रोमिनेंट साइट्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं. सो दीज आर रिटन आउट हियर, ठीक है. और आप जब एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो आई सजेस्ट दैट यू ड्रॉ दी मैप ऑल्सो अलॉन्ग विद दी लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, आप जिसके बारे में भी बात कर रहे हो. इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में बात करें तो हमने देखा है कि लोअर पैलियोलिथिक में मोस्ट ऑफ द आपके आइस एजेस कवर होते हैं. तो उसके हिसाब से जैसे जैसे फिर चेंजेस आए, तो आपका जो पोटवार प्लेट्यू है जो कि आपकी कश्मीर वैली में देखने को मिलेगा, यहाँ के आपको जो स्ट्रक्चर्स है, जो कंडीशंस हैं, वो मोस्टली आपके आइस एज से इन्फ्लुएंस मिलेंगे. दैट इज़ व्हाई यू कैन फाइंड द ग्लेशियर एंड द इंटरग्लेशियर फेसेस ओवर हियर. और वहीं जो भी एरियाज हैं जो नदी के किनारे हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगे, बिकॉज एज यू नो द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये सारी चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है, तो उसका इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन होता है, रेनफॉल होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो फ्लोरा एंड फौना के कंडीशंस में क्या था, तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स कि फ्लोरा एंड फौनास कैसे थे. तो एक कार्बोनाइज ट्रंक पाया गया था विच इज़ नोन एज द अर्जुना स्पीसीज. ये अहमदनगर जो कि आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड है, यहाँ पे मिला था. तो इसमें पाया गया है कि कुछ आपके जो फ्लोरा एंड फौनास थे उस टाइम पे उगने शुरू हो गए थे और पाए जाते थे. और अगर आप फौना की बात करें तो फौना में भी कुछ जो एक्सकवेशंस में मिले हैं एग्जाम्पल्स, और यू कैन से अवशेष जो मिले हैं, उसमें वाइल्ड एलिफेंट, वाइल्ड हॉर्सेस, ऑक्सेस, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, इन टाइप के एनिमल्स देखे गए हैं. सो दैट मीन्स दे वर ऑल एग्जिस्टेंट ड्यूरिंग द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड एज वेल. ऑलराइट, तो ये कुछ समराइज्ड वे में आप याद रख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन. नाउ सिंस वी हैव सीन कि लोअर पैलियोलिथिक अलग अलग जगहों पे था, इंडिया इवन टुडे वी नो इज हैविंग वेरियड कल्चर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एवरीथिंग. तो उस टाइम पे भी अगर आप लोअर पैलियोलिथिक में भी अलग अलग कल्चर्स देखने को चाहें, तो आप उसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं दीज थ्री. What are these? The Madras culture, the Son culture and the Narmada culture. और ये कल्चर किन के ऊपर बेसिस है, तो मोस्टली हम यहाँ जगह के नाम के ऊपर ही कर रहे हैं. तो मद्रास कल्चर जो आपके ये मद्रास वाले रीजन में है, जो सोन कल्चर है ये जो आपकी सोन वैली है जिसको आप सोहन वैली भी बोलते हैं, इट्स हियर ओनली. और नर्मदा कल्चर ऑफ कोर्स ये नर्मदा वैली के आसपास वाले जो रीजन है हम उनकी बात कर रहे हैं. अब इनके अलग अलग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम देख लेते हैं. आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज कि हम क्यों कल्चर के बारे में बात करें. कल्चर लाइक अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया एज अ होल इज लाइक अ कंट्री, और इसके अंदर जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है वो आज हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी के अंदर. उसी तरीके से जो लोअर पैलियोलिथिक पे था ओवरऑल तो ब्रॉडली एक यूनिफॉर्मिटी थी, लेकिन जगह के हिसाब से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी उस टाइप से, जो टूल्स यूज़ किए जाते थे, उनके बेसिस पे इन कल्चर्स को डिवाइड किया गया है. तो हम ब्रॉडली एक बार देख लेते हैं कि अलग अलग कल्चर्स के क्या क्या फीचर्स हैं. सो इन कल्चर्स के बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है, फर्स्टली कि हु हैज़ आइडेंटिफाइड दैट पर्टिकुलर कल्चर, और कौन से रीजन में, दैट इज लाइक इजी टू रिमेंबर बिकॉज कल्चर का नाम उसी के बेसिस पर रखा गया है. एंड व्हाट काइंड ऑफ एन टूल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन वाज देयर, राइट. सो अगर मद्रासियन कल्चर की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूट फुटे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इस कल्चर को 1863 में, वेयर एट अ प्लेस कॉल्ड अटीराम पक्कम इन तमिलनाडु. Sorry if I'm pronouncing it incorrectly. So this is the place where Robert Bruce Foote has identified this culture. और ये कल्चर जो है आपके एचलूनियन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इट अगेन एंड अगेन. अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि लोअर पैलियोलिथिक जो है वो मोस्टली आपके एचलूनियन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है. और किस टाइप के टूल्स यहाँ पे यूज़ हुआ करते थे, बाइफेकल हैंड एक्सेस, क्लेवर, और मोस्टली क्वार्जाइट से बने होते थे, ठीक है.
और आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया था, कॉस्मिक रे एक्सपोजर डेटिंग के बेसिस पे. सी इन पेपर टू व्हाट आई हैव टू डू इज टू लाइक color the content with different colors so that आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाए कि कौन सी चीज़ें हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, तो यहाँ जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं बोल्ड में या अलग कलर्स में, दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू टू रिमेंबर ऑन टू राइटिंग द एग्जामिनेशन. जब सोनियन कल्चर की अगर आप बात करें तो कि हम सोहन वैली जो है पाकिस्तान के रीजन में आपके आ जाएगा आज की डेट में, हम उनकी बात कर रहे हैं. तो ये वाला डिस्कवरी और आइडेंटिफिकेशन किया गया था ड्यूरिंग द येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन लेड बाय दीज पीपल. ठीक है, ड्यूरिंग 1939. अब ये वाला जो कल्चर था ये भी कहीं ना कहीं आपके एचलूनियन इंडस्ट्री का ही कंटेम्प्रेरी है बिकॉज उसी टाइप के टूल्स यूज़ हुआ करते थे. बट देयर वर सर्टेन अदर टूल्स दैट हैज़ बीन यूज, जैसे कि कुछ क्वार्जाइट पेबल, कॉबल्स, बाउल्डर्स, ये सारी चीज़ें भी यूज़ हो जाती थी उस टाइम पे. ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस सोनियन कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मद्रासियन कल्चर. ऑलराइट, और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी जो थे वो भी काफ़ी डिफरेंट थे बिकॉज दिस इज़ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और उस टाइम पे जब आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं जो आज भी आपको अंडर जो इन्फ्लुएंस है ग्लेशियर इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दिस सोनियन कल्चर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्लेशियर इन्फ्लुएंस ओनली. राइट, और नर्मदा कल्चर आपके एच डी टेरा, टी डी पैटरसन, संखालिया सेन, सुपेरकर, जोशी सिंह, दीज आर ऑल लाइक आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस कल्चर को आइडेंटिफाई किया था एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. राइट, और ये वाला जो रीजन है आपके लोअर पेलियोलिथिक कल्चर इन राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑलमोस्ट सिमिलर टू द नर्मदा कल्चर. यानी कि जब आप नर्मदा कल्चर विच इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, और साथ ही साथ आपके जो वेस्टर्न पार्ट थे जहाँ आपको राजस्थान, गुजरात देखने को मिल जाएंगे एंड सर्टन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो कल्चर्स था जो नर्मदा कल्चर का था ये ऑलमोस्ट आपको इन रीजन में सिमिलर ही देखने को मिलेगा. ठीक है, अगर आप उसको समराइज करके देखना चाहते हैं तो सुहानियन कल्चर के अंदर ये आपको रीजन कौन सा है, ये आपको पोटवार पाकिस्तान में मिलेगा, वहीं नर्मदा एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान में मिल जाएगा. मद्रास जो आपका नीचे वाला रीजन है एंड इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ यूपी, उड़ीसा एंड बिहार. ठीक है, तो एक तो इन्फ्लुएंस आपका मद्रास नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज मद्रास में प्रीडोमिनेंट था, बट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फाउंड इन दीज ईस्टर्न रीजन ऑल्सो. राइट, अब यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे थे, ग्लेशियल थे, नर्मदा में प्लूवियल यानी कि रेनफॉल अच्छी खासी थी वहाँ पे, मद्रास में भी वैसा ही था. और जो टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ होते थे दैट इज़ चॉपिंग और चॉपर जो भी आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे नर्मदा में कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स थे और मद्रास में हैंड एक्सेस थे एंड दे वर ऑल बिलोंगिंग टू दी एचलूनियन वाला. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है रिगार्डिंग दीज कल्चर्स. Now when you talk about the middle paleolithic age, तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं that makes it different from the other is the evidence of using fire was first found in this period. Although इसमें भी थोड़ी controversies हैं कि fire इससे पहले यूज हुआ था या नहीं हुआ था, but for us as of now we'll see कि जो middle paleolithic age था उस टाइम से आपकी fire की यूजेज शुरू हुई. अब फायर की यूजेज शुरू हुई तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट पीपल माइट वांटेड टू रोस्ट द मीट दैट दे हैव, और उसकी वजह से अब मीट रोस्ट करना है दैट मीन्स यू हैव टू चॉप इट लाइक प्रॉपरली, और उस चॉपिंग की वजह से भी फिर अलग अलग टाइप के टूल्स डेवलप होने शुरू हुए. और इस मिडिल पेलियोलिथिक एज के अंदर और कल्चर के अंदर आपको क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका का यूज देखने को मिलता है. जैसे हमने देखा लोअर के अंदर आपको क्वार्जाइट, लाइमस्टोन, इन सारे टाइप्स के स्टोन्स देखने को मिल रहे थे. जैसे जैसे थोड़ी और चीज़ें आगे बढ़ी दे स्टार्टेड यूजिंग सिलिका. अब ये सिलिका, लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें कैसे निकल के आई, बिकॉज एज एंड व्हेन द ह्यूमन बीइंग फाइंड आउट कि कौन सी चीज़ें उनको प्रॉपरली सूट कर ली है, इट्स बेसिकली द इनोवेशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आज के डेट में भी आप इनोवेशंस देखते हैं, उस टाइम पे भी इनोवेशंस होते थे. समथिंग बेटर कम्स आउट लाइक विद एवरी एक्सपेरिमेंटेशन. राइट, तो इन टाइप के जो आपके टूल्स थे वो यूज़ होने शुरू हो गए बिकॉज टूल्स की ज़रूरत अब ज़्यादा बढ़ चुकी थी. सिमिलरली आपके कुछ फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, क्रैपर्स, बोरर्स, इनका भी यूजेज शुरू हो गया, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं. दीज पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. और जैसे जैसे आप लोअर से मिडिल में बढ़ेंगे, ये जो कल्चर है ये एचलूनियन से अब मॉइस्टीरियन कल्चर में प्रोसीड कर गया है. बिकॉज हमने देखा लोअर आपके एचलूनियन कल्चर में आता है, एचलूनियन टूल ट्रेडिशन के अंदर आता है, वहीं आपका मिडिल जो है वो मॉइस्टीरियन टूल ट्रेडिशन के अंदर आएगा. ठीक है, एडवांसमेंट हो रही है, और इस टूल ट्रेडिशन के एडवांसमेंट की वजह से आपको इस टाइप के पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि कटिंग के लिए ज़्यादा आप कह सकते हो यूजफुल हो सकते हैं. एंड फॉर दोज ऑफ यू आर हैविंग कन्फ्यूजन कि हम एचलूनियन, मॉइस्टीरियन ये क्या चीज़ें बात कर रहे हैं, तो अगेन आई टोल्ड यू कि 1.8 में हमने ये पढ़ा हुआ है
और आप ये ट्रांजिशन देख सकते हैं, राइट। अब हैबिटेशन की बात करें तो हैबिटेशन में भी आपको अगेन ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं दैट यू नीड टू रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे आउट। कि आपको अगर पूछ लिया जाता है कुछ रीजन्स के बारे में तो उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें लिखने वाले हैं, तो ये चेंज नहीं होंगी, दीज विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा हैबिटेशंस कहाँ कहाँ पे है। एंड अगेन यू कैन लोकेट दैट इन द इंडिया मैप एज वेल। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है आपका, जो ऑफ कोर्स जो आपकी हैबिटेशंस जहाँ पे होगी, हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की भी वहीं पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कुछ जो फेमस जगह हैं वो आपको याद रख लीजिएगा। कुछ भी याद ना आए ना, देन बी वेट का कम्स टू योर रेस्क्यू। ये आपको हर एक लोअर पेलियोलिथिक मतलब हर एक पेलियोलिथिक में मिल जाएगा, चाहे वो लोअर हो, मिडिल हो या अपर हो, तो वो आप मार्क कर ही देंगे। ये पोटवार प्लेट्यू जो है, जो आपका सोहन वैली वाला रीजन है, ये भी आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाएगा। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं जो आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। नोबडी कैन टेल यू दैट हाउ इट हैज टू बी, बट आई कैन टेल यू सम हैक्स दैट आई एम टेलिंग यू कि आप इस तरीके से याद रखें, देन इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बिकॉज एज एंड व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द आइस एज, तो आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन और भी ह्यूमिड हॉट इस तरीके का होता जा रहा है, रेनफॉल बढ़ रहा है, लाइक द वे यू कैन रिलेट टू लाइक टुडेज क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मिडिल पेलियोलिथिक था, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं थी, ना ही बहुत ज़्यादा आपको ग्लेसिफिकेशंस देखने को मिल रहे थे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट यू कैन रिमेंबर। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस कल्चर्स, जैसे हमने लोअर पेलियोलिथिक के अंदर मद्रासियन कल्चर, सोहन कल्चर, नर्मदा कल्चर के बारे में बात की थी, उसी तरीके से आके मिडिल पेलियोलिथिक के अंदर भी अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं। और ये कल्चर किस बेसिस पे है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टूल्स के बेसिस पे है, ठीक है। तो अगेन इस चीज़ को भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी टूल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, बट एज एन व्हेन यू विल मेक योर नोट्स ना, तो यू कैन सी कि कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स है, तो आप कॉमन पॉइंट्स को लिख सकते हो, और कौन कौन से आपको लगते हैं अलग अलग चीज़ें हैं दैट यू नीड टू इंक्लूड, दैट यू कैन डू अलॉन्ग विद। बट कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे 8 जोन्स हैं या 8 टाइप के कल्चर्स देखने को मिलेंगे इन दी मिडिल पेलियोलिथिक। सोन कल्चर, सेंट्रल कल्चर, लूनी कल्चर, निवासियन, सदर्न, साउथ कोस्टल, कुर्नूल छत्तीसगढ़ वाला, एंड देन ईस्टर्न। और इसके अंदर कौन कौन सी साइट्स आती है वो आपको याद रखने हैं, एंड दीज आर द टूल्स। अब ये टूल्स कैसे होंगे, ऑफ कोर्स ये टूल्स जो भी हैं आपके, ये इन्हीं टूल्स में से कोई ना कोई टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आई कैन जस्ट टेल यू दैट हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। बस हम अपर पेलियोलिथिक एज की अगर आप बात करते हैं, तो अपर पेलियोलिथिक के अंदर आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये थोड़ा और वार्मर होता चला गया, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, वार्म था, और इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियन कैन बी attributed टू दिस अपर पेलियोलिथिक एज। क्यों? बिकॉज जो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब तक आपका कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, होमोसेपियंस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। आज के डेट में अगर आप देखें कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने लगेगा तो इट कैन बी वेरी डिजास्टर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। और जो आपकी भीमबेटका की रॉक शेल्टर की पेंटिंग्स हैं वो आपके अप पेलियोलिथिक एज को बिलोंग करती है, राइट। टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स में मोस्टली आपका वही मॉस्टीरियन वाला फॉलो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक और कल्चर है जो आपको इंक्लूड करना है, दैट इज ऑस्टियोडोंटेराटिक कल्चर। अब ये ऑस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर क्या है, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे बोन्स से टूल्स बनने शुरू हो गए थे। वाई बोन्स? बिकॉज अभी फायर की भी डिस्कवरी हो चुकी है, ऊपर से आपने देखा कि कुछ शार्पनेस भी टूल्स में आ चुका था मिडिल के टाइम पे, मिडिल पेलियोलिथिक में। तो इसकी वजह से जो स्क्रैपिंग थी ऑफ द एनिमल दैट बिकम्स ईजी, और स्क्रैपिंग की वजह से जो बोन्स थे वो ईजिली अवेलेबल हो जाते थे, और बोन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से उन्होंने देखा कि दैट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, जैसे कि उसको फिशिंग हुक की तरह यूज़ करने लगे, निडल्स की तरह यूज़ करने लगे, बिकॉज लोअर मतलब मिडिल अपर पेलियोलिथिक आते आते धीरे धीरे जो एनिमल्स की छाल थी लाइक और जो आपके लीव्स थे उनके क्लोथिंग्स भी इस्तेमाल किए जाने लगे, एंड फॉर दैट क्लोथिंग दे माइट वांटेड टू स्टिच इट ऑल टुगेदर, नॉट लाइक द प्रेजेंट डे बुटीक्स और अदर ब्रांड्स, बट वो थोड़ा बहुत करना चीज़ों को शुरू कर चुके थे, ठीक है। तो उसके लिए निडल्स की तरह भी यूज़ होना शुरू हो गया आपके बोन्स का। तो ये कुछ चेंजेस थे जो टूल्स ट्रेडिशंस में आपको देखने को मिले, राइट। आप यहाँ पे देखिए अपर में ये मॉस्टीरियन आपका पूरा का पूरा मिडिल को कवर करता है, एंड देन समवॉट टू द अपर, और अपर में आपका ये वाला ऑस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर इंक्लूड हो जाएगा।
और जो आपके टूल्स थे वो कुछ इस टाइप के टूल्स यूज़ होने शुरू हो गए। ब्लेड ट्रेडिशंस भी आया, जो कि ब्लेड टेक्नोलॉजी आप बोलते हैं, जिसमें शार्पनेस होती है, वो भी इस्तेमाल किए जाने लगे ड्यूरिंग द अपर पेलियोलिथिक, राइट। देन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिर वही आपका, मैंने आपको बताया है कि भीमबेटका आपको देखने को मिल जाएगा, बेलन, सोन, आपका सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लू में हाईलाइटेड दिख रही हैं, ये आप नाम याद रख सकते हैं एंड यू नीड टू राइट इट डाउन, ठीक है। और मैप तो आपको ड्रॉ करना ही है, दैट इज अनकंडीशनल। देन एनवायरमेंटल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्मर होता गया था, हमने देखा है, और ह्यूमिडिटी थोड़ी लेस ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर रेनफॉल होगी तो आपकी फ्लोरा एंड फौना भी और ज़्यादा डेवलप करेगी। तो ये ट्रांजिशन था धीरे धीरे, और फ्लोरा एंड फौना होगी तो आपके एनिमल के सर्वाइवल के चांसेस होंगे, फ्रूट्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, तो होमोसेपियंस के भी खाने के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन कोरिलेट। और कुछ एक्सकवेशंस में किस किस साइट्स में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई थी, इफ़ यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो याद रख लें, दिस विल हेल्प यू इन फेचिंग मार्क्स लाइक दीज थिंग्स, कि कहाँ पे कौन सी स्पीसीज, एंटीलॉप की स्पीसीज, गेजिला की स्पीसीज कहाँ पे डिस्कवर की गई थी, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में डिस्कवरी की गई थी। तो अगर आप ये पॉइंट्स ऐड करते हैं तो इट गिव्स योर आंसर सर्टन वेटेज, राइट। देन अपर पेलियोलिथिक कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो अपर पेलियोलिथिक कल्चर आपको 5 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, अगेन बेस्ड अपॉन दी जोग्राफिकल लोकेशन और टूल्स। तो जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5-5 से कौन जोन होंगे, साउथ सदर्न, साउथ सेंट्रल, वेस्टर्न पेनिनसुला, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न। और अगेन टूल ट्रेडिशंस में भी अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, दैट इज दी स्टोन ब्लेड्स। स्टोन ब्लेड्स आपको मोस्टली हर जगह देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी ब्लेड्स है, स्टोन ब्लेड्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है, और एग्जामिनेशन में जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको उस तरह से आंसर करना है। एंड वन एक्सरसाइज दैट आई सजेस्ट यू, लाइक आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपके पेलियोलिथिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार आप उन क्वेश्चंस को देखिए और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न, बिकॉज पेपर 2 रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ थिंकिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल, अनलाइक पेपर 1 जहाँ पे आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स लर्न करने होते हैं एंड यू कैन राइट इट डाउन एज इट इज, और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं स्पेशली इन द फिजिकल, एंथ्रोपोलॉजी एंड सो। बट फॉर पेपर 2 आपको थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से भी डालना पड़ेगा, and for that I'm there to always help you, and thank you so much.